हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिफिकल्टीज होती है बच्चों को, तो आज हम लोग सारी डिफिकल्टीज सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री विथ इंट्रोडक्शन। इसमें पहले मैं पूरी फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करता हूँ। समझो एक ट्रायंगल है ABC, बी पे 90 है, एंगल बी इज 90 और एंगल सी पे थीटा है। तो थीटा के अपोजिट साइड ए बी है। ए बी साइड को हम कहेंगे साइड अपोजिट टू थीटा और बीसी को हम कहेंगे एडजेसेंट साइड। बीसी इज एडजेसेंट साइड और एसी होगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज is equal to AB upon AC. You can check it from figure. Cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse is equal to BC upon AC. In the same way, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side is equal to AB upon BC. Now sin theta, its opposite is called cosec theta. Hypotenuse upon opposite side is equal to AC upon AB. And opposite of cos theta is known as sec theta. It is hypotenuse upon adjacent side, so answer will be AC upon BC. And opposite of tan theta is called as cot theta. Formula is adjacent side upon opposite side is equal to BC upon AB. You can check it from the figure. Next, interrelation between trigonometric ratios. Suppose triangle is ABC. Sin theta is equal to opposite side upon hypotenuse is equal to AB upon AC. Cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite side is equal to AC upon AB. So sin theta and cosec theta. Sin theta multiply by cosec theta. Sin theta AB upon AC, cosec theta AC upon AB. Cut हो गए, AC AC में cut. The answer is 1. So the property is sin theta into cosec theta is equal to 1. और ये हमने prove that भी कर दिया. और अगर शिफ्ट करें तो sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. This is first property. Now second, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse BC upon AC. So cos theta is equal to hypotenuse upon adjacent AC upon BC. So cos theta into sec theta. Cos theta multiply by sec theta. Values put करेंगे BC upon AC. Sec theta की वैल्यू है AC upon BC. कट हो गए. The answer is 1. तो हमने सेकेंड प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी. cos theta into sec theta is equal to 1. So cos theta is equal to 1 upon sec theta and sec theta is equal to 1 upon cos theta. Third, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side AB upon BC. Cot theta is equal to adjacent side upon opposite side BC upon AB. तो tan theta into cot theta वैल्यू पुट करेंगे AB upon BC और cot theta की वैल्यू BC upon AB. सब कट हो गए. आंसर 1. तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर ली. tan theta into cot theta is equal to 1. Therefore, tan theta is equal to 1 upon cot theta and cot theta is equal to 1 upon tan theta. So 3 properties. फोर्थ, जो हमें पहले से ही पता है, tan theta is equal to sin theta upon cos theta. ये हमने 9th सेशन में पढ़ा हुआ है. और tan theta, तो cot theta का क्या होगा? cos theta upon sin theta. सिक्स्थ, अभी न्यू है ये, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इसको शिफ्ट करेंगे, cos स्क्वायर माइनस में जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. दिस विल बी द सिक्स्थ फॉर्मूला. सेवेंथ, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. शिफ्ट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और अगर हम और शिफ्ट करें
तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गई सेवेंथ प्रॉपर्टी। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी देखो शिफ्ट करेंगे, माइनस में cot जाएगा, इज इक्वल टू 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 8th फॉर्मूला। टोटल ये मेन 8 फॉर्मूलाज हैं। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स हैं विद रेफरेंस टू द फिगर। ध्यान दो, हमारे पास एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, सी पे थीटा है, तो साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। चेक करना आंसर, AB अपॉन AC, यस। cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, BC अपॉन AC। चेक करो, फिगर से चेक करते जाओ। tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो क्या होगा, AB अपॉन BC। Now complete the relations in ratios given below. Let's see. Sin theta upon cos theta, first divide by second is equal to tan theta, third number. तो sin theta is equal to cos 90 minus theta, ये लर्न करना फॉर्मूला। cos theta is equal to sin 90 minus theta, और फोर्थ tan theta into tan 90 minus theta equal to 1। ये आ सकते हैं MCQs में। Now complete the equation. सेम फिगर यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, तो 1। राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, यस, साइन 30 की फॉर्मूला होती है 1 अपॉन 2। कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, और थर्ड tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। साइन 60 √3 अपॉन 2। cos 45 1 upon √2, tan 45 1। In ninth standard we have studied some trigonometric ratios of some acute angles. चलो देखते हैं नाइन्थ में हमने क्या सीखा था। Now we are going to study more trigonometric ratios of acute angles. 10th स्टैंडर्ड में हम लोग थोड़ा और आगे सीखेंगे। ये वीडियो 9th और 10th स्टैंडर्ड दोनों के लिए काम आएगा, cosec, sec और cot, क्योंकि 9th में हमने sin, cos, tan सीखा था। Multiplicative inverse or the reciprocal of sine ratio is called consecant ratio. It is written in brief as cosec. So cosec theta is equal to 1 upon sine theta. Similarly, multiplicative inverses or reciprocals of cosine and tangent ratios are called secant and cotangent ratios respectively. They are written in brief as sec and cot. Secant को shortcut में sec कहेंगे, कॉन्टेंजेंट को शॉर्टकट में कॉट कहेंगे। Therefore sec theta is equal to 1 upon cos theta, या cot theta is equal to 1 upon tan theta। ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है। अब ये फिगर देखो ABC, उसमें C पे थीटा है, sin थीटा is equal to AB upon AC, तो cosec थीटा की फॉर्मूला होती है 1 upon sin थीटा। वैल्यू पुट करता हूं मैं, sin थीटा की वैल्यू है AB upon AC, तो रिवर्स हो जाएगा AC upon AB। इट मींस cosec theta is equal to hypotenuse upon opposite। देखो AC hypotenuse है, AB opposite side है। tan theta is equal to AB upon BC। cot theta की फॉर्मूला होती है 1 upon tan theta। वैल्यू पुट करेंगे 1 upon AB upon BC। देखो tan theta की वैल्यू मैंने पुट की, अब ये रिवर्स हो जाएगा, तो cot theta is equal to BC upon AB। Therefore cot theta is equal to adjacent side upon opposite side। BC adjacent है, AB opposite है, तो cos theta is equal to BC upon AC। चेक करो, sec theta is equal to 1 upon cos theta, sec theta is equal to 1 upon BC upon AC। वैसे ही मैंने पुट किया वैल्यू, फिर ये रिवर्स हो जाएगा AC upon BC। इट मींस sec theta is equal to hypotenuse upon adjacent side। इस तरीके से हमने फॉर्मूलाज प्रूव कर ली। tan theta is equal to sin theta upon cos theta, यस, फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हो tan theta आता है, तो cot theta is equal to 1 upon tan theta, 1 upon sin upon cos। देखो वैल्यू पुट की मैंने tan theta की, अब ये cos ऊपर चला जाएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा,
तो cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसीलिए cot थीटा की फॉर्मूला हो गई cos अपॉन sin. Remember this. The relation between trigonometric ratios according to the definition of cosec, sec and cot ratios. 1 upon sin theta is equal to cosec theta. Therefore, sin theta into cosec theta is equal to 1. ये फॉर्मूला हमें लर्न करनी है. हाँ, 1 upon cos theta is equal to sec theta. Cos theta into sec theta is equal to 1. ये हमें रिमेंबर है, याद करना है हमें सब चीजें. 1 upon tan theta is equal to cot theta. तो tan theta into cot theta is equal to 1. जितनी आप फॉर्मूला लर्न करोगे ये चैप्टर उतना आपको ज्यादा इजी लगेगा. Let's learn trigonometric identities. In the figure, in triangle ABC, right angle triangle, angle B पे 90 है, A पे थीटा है. Sin theta is equal to BC upon AC. Cos theta is equal to AB upon AC. चेक करो फिगर से. हाँ, फॉर्मूला लगा के चेक करो. tan थीटा BC upon AB. तो cosec थीटा AC upon BC. चेक करना. तो sec थीटा AC upon AB और cot थीटा AB upon BC. हमने सब थीटा को देख के लगाया. अभी पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं. यहां से इंपॉर्टेंट है, देखना मैं कौन सी प्रॉपर्टी प्रूव करने वाला हूं. ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया. सबको अभी AC स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे. तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर. AC AC में कट हो जाएगा तो 1 हो जाएगा. तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर और AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब व्हाट इज BC अपॉन AC? BC अपॉन AC, इसको मैंने होल स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट में. BC अपोजिट है, AC हाइपोटेन्यूज है. अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन. हाँ, और वहां पे कॉस. तो मैंने प्रूव कर लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो जो स्कॉलर्स हैं वो इस वापस को वीडियो को रिप्ले करके देखो, और ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये वाला वीडियो आपको बहुत काम आएगा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर से. अब देखना मैं क्या प्रूव कर रहा हूं. तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. तो क्या होगा, साइन स्क्वायर में कट हो जाएगा. 1 प्लस अभी कॉस अपॉन साइन तो क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. यस, इसको नंबर दे देंगे हम लोग थर्ड. अब इसको डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर को. तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर. तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर. तो अभी क्या कट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर. हाँ, और साइन अपॉन कॉस तो tan होता है. तो एक और प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. इसको नंबर देंगे हम लोग फोर्थ. तो रिलेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. If sin theta is equal to 20 upon 29, find the cos theta. Method 1. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. वैल्यू पुट करेंगे. 20 upon 29 whole square plus cos square theta is equal to 1. 400 upon 841, 929 का स्क्वायर 841. अब ये शिफ्ट करेंगे माइनस में. तो 1 माइनस 400 अपॉन 841. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर इज इक्वल टू 441 अपॉन 841. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हो. अब स्क्वायर निकालेंगे तो 21 अपॉन 29. ये आ गया cos थीटा का आंसर 21 अपॉन 29. ये सेकेंड मेथड. sin theta is equal to 20 upon 29. AB अपॉन AC वैल्यू पुट करेंगे. लेट लेंगे k, AB is equal to 20k, AC equal to 29k, जो हमने 9th में सीखा था. सेम मेथड फिर पाइथागोरस लगाएंगे. BC को x लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अभी हम लोग. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. आप सबने ये 9th में सीखा था. वैल्यू पुट करेंगे. 20 का स्क्वायर 400, 841 का
29 का स्क्वायर 841, शिफ्ट करेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। यस, उसको शिफ्ट करेंगे -400k² तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 841 माइनस करेंगे 400 तो 441k², x इज इक्वल टू 21k। तो x मतलब हमने BC फाइंड कर लिया, BC cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, 21k अपॉन 29k। ये सेम मेथड हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था, k कट 21 अपॉन 29। तो ये मेथड से भी आप cos थीटा फाइंड कर सकते हो, जैसे हमने 9th में सीखा था। If sec theta is equal to 25 upon 7, find the value of tan theta। चलो अभी sec थीटा में से tan थीटा कैसे फाइंड करेंगे? सॉल्यूशन मेथड फर्स्ट, वैसे ही पहले जो हमने 10th में सीखा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 अपॉन 7 होल स्क्वायर, क्योंकि sec थीटा की वैल्यू दी हुई है 625 अपॉन 49 और 1 माइनस में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 625 माइनस 49 अपॉन 49, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, माइनस करो देखो कितना आंसर आता है 576। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 576 का स्क्वायर होता है 24 और स्क्वायर रूट होता है, और 49 का रूट होता है 7। tan थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 7। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब देखते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड वही जो हमने 9th में सीखा था, इसमें फिगर कंपलसरी बनानी है। समझो P पे थीटा है तो PR होगा हाइपोटेन्यूज, कॉमन मल्टीपल K लेंगे तो PQ हो जाएगा 7K, PR इज इक्वल टू 25K। फिर पाइथागोरस थ्योरम, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 7K होल स्क्वायर और PR का है 25K होल स्क्वायर, तो 49 K स्क्वायर और 625K स्क्वायर माइनस करेंगे तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू सेम 576K स्क्वायर, तो QR इज इक्वल टू 24K। देखो QR फिगर में 24K, तो tan थीटा इज इक्वल टू QR अपॉन PQ, QR की वैल्यू 24K अपॉन 7K, K में कट, तो आंसर आ गया 24 अपॉन 7। इस तरीके से भी हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन सेज इफ 5 sin थीटा minus 12 cos theta is equal to 0, find the value of sec theta and cosec theta। ओके, चेक करते हैं आंसर। 5 sin थीटा minus 12 cos theta is equal to 0 हमें दिया हुआ है, ये है सॉल्यूशन। 5 sin थीटा minus 12 cos थीटा, शिफ्ट करेंगे -12 cos थीटा पॉजिटिव में चला जाएगा। आप देख रहे हो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अब इसको मैंने शिफ्ट कैसे किया, वैसे शिफ्ट करना है। 12 अपॉन 5, साइन अपॉन कॉस की फॉर्मूला होती है 10, तो tan थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 12 अपॉन 5। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 12 अपॉन 5 होल स्क्वायर, और सेक स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है 144 अपॉन 25, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 144 और अपॉन 25 सेम। यस, तो ये हो जाएगा 169 अपॉन 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा सेम। 169 किसका रूट है, 169 किसका स्क्वायर है, सॉरी 13, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो सेक थीटा हमें मिल गया 13 अपॉन 5। नाउ सेक थीटा, हाँ सेक थीटा में से कॉस थीटा में मिल गया 5 अपॉन 13, मैंने रीजन भी बताया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, शिफ्ट करेंगे, देखो माइनस में शिफ्ट किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू पुट की मैंने 5 अपॉन 13, 25 अपॉन 169, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, 144 और 169, 169 25 करेंगे 144 आएगा, और 12 अपॉन 13 साइन थीटा हमें मिल गया। स्क्वायर निकालेंगे तो कॉसेक थीटा उसका अपोजिट होता है साइन थीटा का, तो 13 अपॉन 12, रीजन हमने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। आप क्या करोगे, वीडियो देखने के बाद ये सम करके भी देखना कॉपी में, तब आपकी प्रैक्टिस होगी, और फिर ये वीडियो चला के देखना कि हमारा सम राइट है कि नहीं। कॉस थीटा की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2, तो सेक थीटा की वैल्यू 2 अपॉन रूट 3, सबको मालूम है ये रिवर्स होते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, मैंने वैल्यू डाली,
कॉस की वैल्यू √3/2 होल स्क्वायर और 1 सेम लिखा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2, √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब उसका उल्टा मतलब रिवर्स हो जाएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू 2। अब 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा, ये क्वेश्चन में से लिया, अब वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 2 अपॉन √3 और अपॉन में 1 प्लस 2, cosec थीटा की वैल्यू 2 निकाली है। देखो मैं वैल्यू को हाईलाइट भी कर रहा हूं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, √3 माइनस 2 अपॉन √3, हाँ तो ये हो गया 3√3, देखो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ जाएगा, तो आंसर आया √3 माइनस 2 अपॉन 3√3। मेथड सेकंड भी है इसके लिए, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, वी नो cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो थीटा इज इक्वल टू 30, मतलब थीटा हमें 30 दिया हुआ है, तो sec थीटा मतलब sec 30 तो 2/√3, ये हम टेबल में से निकालेंगे, और cosec थीटा तो cosec 30 और उसकी वैल्यू होगी 2, फिर ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग क्वेश्चन में पुट करेंगे टेबल में से देख के, और बाकी कैलकुलेशन सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम वैसे ही पहले जैसा आंसर आ जाएगा। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 माइनस 2 अपॉन √3 अपॉन 3, फिर ये 3 ऊपर √3 के साथ चला जाएगा, तो सेम आंसर आएगा √3 माइनस 2 अपॉन 3√3। दोनों मेथड करेक्ट हैं, कोई भी मेथड आप कर सकते हो, बोथ मेथड आर करेक्ट। नेक्स्ट है, शो दैट sec x plus tan x is equal to √1 plus sin x upon 1 minus sin x। तो इसमें LHS RHS हमें इक्वल करना है, हमेशा LHS RHS इक्वल होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। sec x plus tan x, sec x की जगह पे 1 अपॉन cos x, tan की जगह पे sin x अपॉन cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 प्लस sin x अपॉन cos x। अभी रूट और स्क्वायर लगाया मैंने, ध्यान दिया आपने, रूट भी लगाया स्क्वायर भी लगाया। अब ऊपर दो ब्रैकेट बनाएंगे, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि होल स्क्वायर है दोनों ब्रैकेट सेम बन सकती है, और कॉस स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब नीचे दो ब्रैकेट बनाएंगे, एक प्लस में एक माइनस में, और 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कट हो जाएगा, बाकी हमारे पास RHS बचेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल, तो LHS इज इक्वल टू RHS हमने कर लिया। यस, ये एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया ये। नेक्स्ट, एलिमिनेट थीटा, यस वेरी इंपॉर्टेंट। x is equal to a cot theta minus b cosec theta, y is equal to a cot theta plus b cosec theta। एलिमिनेट थीटा मतलब थीटा को निकाल देना है, तो देखते हैं अभी कैसे करेंगे ये मैंने क्वेश्चन लिखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसको नंबर 1 दे दिया हमने, और y को नंबर 2 दे देंगे। फिर याद है हम लोग जैसे इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो x और y, तो x प्लस y, a हो गया 2a, हाँ शिफ्ट कर दिया हमने, x प्लस वाई अपॉन 2a, ये कॉट थीटा की वैल्यू मिल गई। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, y माइनस एक्स, हाँ, और वहां पे होगा 2b कॉसेक थीटा, फिर शिफ्ट करेंगे तो कॉसेक थीटा की वैल्यू मिल गई y माइनस एक्स अपॉन 2b, इसको इक्वेशन नंबर देंगे 4th। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमें फॉर्मूला मालूम है, इसमें मैं वैल्यू डालता हूं। आप देख रहे हो हमने थीटा निकाल दिया इस स्टेप में, बस बाकी इसको थोड़ा डेकोरेट करना है, ये वैल्यू डालेंगे तो थीटा निकल चुकी है। देयरफॉर देखो देखो 2 के जगह पे 4 हो जाएगा, और वहां पे भी 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने थीटा को एलिमिनेट कर लिया। या ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं, 4 नीचे कॉमन निकाल के हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। यस, 4 हमने एलसीएम निकाला और हमने ऊपर शिफ्ट किया, तो आप दोनों स्टेप में से कोई भी स्टेप आंसर में लिख सकते हो। ये हमने कंप्लीट कर लिया। चलो देखते हैं अभी 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन। sin थीटा की वैल्यू है 7/25, हमें फाइंड करना है cos थीटा एंड tan थीटा। लेट्स सी आंसर कैसे करेंगे। sin थीटा में से cos थीटा कैसे निकालते हैं, सबको मालूम है, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, sin थीटा इज इक्वल टू 7/25 दिया हुआ है, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/25, 7 का स्क्वायर कर दिया
फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस शिफ्ट कर देंगे 49 अपॉन 625, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 625 माइनस 49 अपॉन 625। यस, देखो 625 माइनस 49 करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 अपॉन 625। तो cos थीटा इज इक्वल टू 24 अपॉन 25। एक हमने आंसर फाइंड कर लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। तो बॉक्स लगा देंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, 7 अपॉन 25 अपॉन 24 अपॉन 25। तो फिर 7 अपॉन 25 मल्टीप्लाई, तो ये रिवर्स हो जाएगा 25 अपॉन 24, 25 में कट, तो आंसर है 7 अपॉन 24। करेक्ट, tan थीटा हमें मिल गया 7 अपॉन 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.1 सेकंड, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। हमें फाइंड करना है sec थीटा एंड cos थीटा। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ये हमें गिवन है। ये है थीटा, देखो k वाला मेथड कर रहे हैं हम लोग, कॉमन मल्टीपल k लेंगे तो ए बी अपॉन बी सी, 3k और बी सी की वैल्यू हो जाएगी 4k। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 25k स्क्वायर, स्क्वायर निकालेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 5k। यस, अब हमें फाइंड करना है सेक थीटा। सेक थीटा की फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी अपॉन बी सी, वैल्यू पुट करेंगे 5k अपॉन 4k, के कट, तो आंसर आया 5 अपॉन 4। कॉस थीटा, उसकी फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन 5 अपॉन 4, तो ये फिर रिवर्स हो जाएगा 4 अपॉन 5। तो सेक थीटा 5 अपॉन 4 और कॉस थीटा 4 अपॉन 5। ये हमने फाइनल सेकेंड सम भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, cot theta is equal to 40 upon 9, find the value of cosec theta and sin theta। देखते हैं आंसर। cot theta की वैल्यू हमें दी हुई है 40 अपॉन 9। अब cosec theta और sin theta हमें फाइंड करना है। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो ये 40 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, 1600 अपॉन 81। वी हैव 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये हमने फॉर्मूला लर्न की हुई है पहले, वैल्यू पुट की मैंने। cosec स्क्वायर थे सेम हमें फाइंड करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 81 प्लस 1600 अपॉन 81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो 1681 अपॉन 81। अब 1681 का रूट क्या होता है, 41। ध्यान देना, ये लर्न कर लो प्लीज सब लोग। तो 41 अपॉन 9, ये हमने फाइंड किया cosec थीटा। अभी sin थीटा जो होता है वो cosec थीटा का रिवर्स होता है, तो 1 अपॉन cosec थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 41 अपॉन 9। तो ये आंसर आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41। इस तरीके से हमने cosec थीटा इज इक्वल टू 41 अपॉन 9 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 9 अपॉन 41, दोनों हमने फाइंड कर लिया। देखते हैं अभी 6.1 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा is equal to 0, find the value of sec थीटा, cos थीटा and sin थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 sec थीटा minus 12 cosec थीटा is equal to 0 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो शिफ्ट कर रहा हूं मैं, 12 cosec थीटा पॉजिटिव साइड चला जाएगा। नाउ sec थीटा अपॉन cosec थीटा is equal to 12 अपॉन 5। sec थीटा की फॉर्मूला होती है 1 अपॉन cos थीटा, cosec थीटा की फॉर्मूला 1 अपॉन sin थीटा, 12 अपॉन 5 से। अब डिवाइड में भी डिवाइड है, तो ये मल्टीप्लाई में रिवर्स हो जाएगा, sin थीटा अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 1 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू मिल गई हमें 12 अपॉन 5। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 12/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 144/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्लस करेंगे तो 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 169 का रूट 13 और 25 का 5, तो सेक थीटा की वैल्यू मिल गई 13/5। फर्स्ट आंसर हमें मिल गया क्वेश्चन में से। नाउ कॉस थीटा, वो 1/sec थीटा फॉर्मूला होती है 1/13/5, फिर इसको रिवर्स कर देंगे तो 5/13, तो cos थीटा की वैल्यू भी मिल गई हमें 5/13। नाउ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला हमें पता है, वैल्यू पुट करेंगे 5/13 और 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1, फिर इसको माइनस में शिफ्ट करेंगे, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। मेरे एडवाइस है कि सिर्फ वीडियो देखना मत, इसको सॉल्व भी करके देखना, फिर वीडियो चला के चेक करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस 25, तो 144/169, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो 144/69, 144 का होगा 12 और 169 का 13। इस तरीके से हमने तीनों आंसर फाइंड कर लिए, सेक थीटा, फिर कॉस थीटा और लास्ट में साइन थीटा। नीचे आंसर भी हमने फ्रेम कर लिया। ऐसे आपको पेपर में भी आंसर फ्रेम करने चाहिए, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी होती है, फिर टीचर को लगता है कि यस इस बच्चे को फुल मार्क्स देनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 6.1 में tan थीटा इज इक्वल टू 1 फाइंड करना है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। स्टार्ट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1, we know that tan 45 is equal to 1, आप टेबल में चेक कर सकते हो, तो थीटा की वैल्यू 45 हुई, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये हमने टेबल में से देख लिया। कॉस थीटा तो कॉस 45, उसकी वैल्यू होगी 1/√2, फिर सेक थीटा सेक 45, उसकी वैल्यू होगी √2, ये देखो आप टेबल में से चेक कर सकते हो। कॉसेक थीटा तो कॉसेक 45 और उसकी वैल्यू हमने टेबल में से देखी √2। अब ये सारी वैल्यू हम लोग इसमें क्वेश्चन में पुट करेंगे। ये पुट करने की ही जो वैल्यू है उसके बाद जो कैलकुलेशन है वो ध्यान देना, 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन √2 प्लस √2, तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 1 प्लस 1 2 और नीचे हो गया 2√2। अब इसको डिवाइड करना है, तो 2/√2 मल्टीप्लाई 1/2√2, तो आंसर आया √2 इंटू √2 2, 1/2 आंसर। कितना इजी था, सिंपल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, हमें फुल में से फुल मार्क्स मिल सकती है। अगर आप टेबल में से इसकी वैल्यूज ढूंढोगे तो ये बहुत ही इजी मेथड है। नेक्स्ट है 6.1 में क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। फिर से LHS RHS हमें करना है। LHS में है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। यस, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। अभी sin स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन cos थीटा। देखो मैंने रीजन में भी लिखा है, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा की फॉर्मूला होती है sec थीटा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। यस, 2 मार्क्स का सम, वेरी इजी। करके देखो प्लीज, कॉपी में करके देखो, फिर ये वीडियो प्ले करो और फिर चेक करो, इसको पॉज करो और उसके बिना देख के करो, तब आपका फायदा होगा, और जब आप करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट है 6.1 में सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड, हमें प्रूव करना है अभी cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो देखते हैं LHS। अगर आपको खुद ट्राई करना है तो उसको पॉज करके पहले ट्राई करके देखो। अभी LHS का cos स्क्वायर थीटा मैंने सेम लिखा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर की थीटा की फॉर्मूला होती है sec स्क्वायर थीटा, ये लर्न करना है आपको। अब cos स्क्वायर थीटा
इंटू सेक स्क्वायर का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर में कट, तो आंसर आ गया 1। सिंपल क्वेश्चन, LHS इज इक्वल टू RHS। कितना इजीली हमने कर लिया। अभी भी बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं सब स्टूडेंट्स को, ध्यान दो, फॉर्मूलाज पहले लर्न करो, उसके बाद ये सम्स बिना देख के करके देखो, तब आपका बहुत फायदा होगा। जल्दी उठाओ नोटबुक, करके देखो प्लीज। Yes, very important. Under root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta. चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत बच्चे तो रूट देखते ही डर जाते हैं, तो हम लोग इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो डिनोमिनेटर की साइन है उसकी अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्जुगेट। 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट में 1 माइनस साइन थीटा सेम, देखो मैं कहां से ला रहा हूं, और ये 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना कहते हैं। ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया क्योंकि दोनों सेम थे, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि प्लस माइनस में है, 1 माइनस साइन होल स्क्वायर और अपॉन में यस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट और स्क्वायर सब आपस में कट हो गए, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा दोनों को मिलेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरीके से LHS इज इक्वल टू RHS कर लिया। फिर से बोलता हूं, पॉज करो वीडियो को, ये वाला सब वापस करो प्लीज, फिर इसको रिप्ले करके चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये तो वीडियो बन गया, तो उसके बाद आप कितनी बार भी उसको देख सकते हैं, आपको अभी किसी से एक्सप्लेनेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड वीडियो है। Prove that sec theta minus cos theta cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta। चलो देखते हैं अभी कैसे प्रूव करेंगे इसको। लेट्स सी सॉल्यूशन। अगर आपको ट्राई करना है तो पहले पॉज करो, फिर करके देखो, फिर वीडियो देखो। ये है LHS, sec थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा की जगह पे 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये वाला कॉस थीटा सेम, कॉट थीटा की फॉर्मूला 1 अपॉन tan थीटा, और लास्ट वाला tan थीटा सेम, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे फॉर्मूला होती है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा सेम, 1 प्लस टेन स्क्वायर की फॉर्मूला होती है सेक स्क्वायर अपॉन टेन थीटा सेम। यस, अभी देखो क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा। यस, जो जो आपस में कट हो रहे हैं वो कट किए। देखो मैं ब्लू पैच लगा के उसको शो कर रहा हूं, मैं कैसे फॉर्मूला लगा रहा हूं, कौन सा सेम रख रहा हूं। तो मैंने इसमें अब नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा में कट हो गया, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट अभी करते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट है cot थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू सेक थीटा। चलो करते हैं, cot थीटा प्लस टेन थीटा को प्रूव करना है cosec थीटा इंटू सेक थीटा। LHS में है cot थीटा प्लस टेन थीटा, cot थीटा की फॉर्मूला cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा की फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन cos थीटा। फॉर्मूला लर्न है तो आपको तकलीफ ही नहीं होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा। यस, 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1। अब 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक और कॉस का अपोजिट होता है सेक। यस करो, ये वापस करो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है 2 मार्क्स के लिए। ध्यान से देखो, अगर आप वापस करके देखोगे तो आपको 2 में से 2 मार्क्स मिलेगी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6 अभी। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये वीडियो आप खुद भी यूज करो, अपने फ्रेंड्स को भी दो यूज करने के लिए, जो वीक हैं ट्रिग्नोमेट्री में उनको आराम से सब समझ में आ जाएगा। ये है LHS 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
ये फिर से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इनटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा और स्क्वायर करेंगे माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यस, मैंने ये बताया रीजन ए माइनस बी और ए प्लस बी का। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम लिखेंगे और अपॉन में याद है फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और लास्ट वाला टेन स्क्वायर थीटा सेम। देखो रीजन भी लिखा है मैंने, सेक स्क्वायर की फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेम, अपॉन में टेन स्क्वायर कट हो गया, अपॉन 1 से डिवाइड करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS। वेरी इजी। फिर भी अगर कोई डाउट लगे आपको तो आपको नीचे कमेंट में बताना मुझे, मैं और ज्यादा थोड़ा डिटेल में आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई टेंशन मत लेना, जितनी मैंने मेहनत की है ये पूरा एनिमेशन बनाने के लिए, तो वो ध्यान से आप लोग उसको यूज करो, आप यूज करो अपने फ्रेंड्स को भी जो यूज करने के लिए। sec 4 theta minus cos 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta. Here the question should be, देखो क्वेश्चन में करेक्शन है, sin 4 theta minus cos 4 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta। ये देखो क्वेश्चन में क्या करेक्शन है, sec 4 की जगह पे मैंने sin 4 theta लिखा है, ध्यान देना। sin 4 theta minus cos 4 theta, जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें तो तकलीफ नहीं है। अब यहां से मैंने दो ब्रैकेट बनाई, एक प्लस में एक माइनस में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है और साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और लास्ट वाला कॉस स्क्वायर थीटा सेम, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यस, LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत इजी था सब, आराम से हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 6.1 में क्वेश्चन नंबर 8, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। ये है LHS RHS, फिर से हमें प्रूव करना है। sec थीटा प्लस tan थीटा ये LHS है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट पेयर, मतलब ऑपोजिट साइन। sec थीटा प्लस tan थीटा का अपोजिट sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। ये सेम लिखा हमने। अभी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर की फॉर्मूला 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ये मैंने रीजन लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा, उसको शिफ्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अभी 1 सेम sec थीटा की जगह पे 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब ऊपर न्यूमरेटर में 1 सेम, अब यहाँ पे cos थीटा डिनोमिनेटर में सेम है, तो 1 माइनस cos थीटा रिवर्स करेंगे तो cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। LHS इज इक्वल टू RHS। वो वेरी इजी क्वेश्चन, आप भी प्लीज करके देखो, नोटबुक ओपन करो, प्लीज करो। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। आप खुद भी करो और दूसरों को भी सिखाओ, तो आपका भी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, आपके फ्रेंड्स के डाउट्स भी क्लियर होते जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है 1 माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमें शो करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, वो भी 2 है, तो टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे हम लोग, तो होल स्क्वायर करेंगे, टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर की हम लोग होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाएंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4। यस, लास्ट में अभी टेन थीटा कट, अब बाकी जो बचा वो लिखा। अब ये प्लस 2 शिफ्ट कर देंगे माइनस में, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 2, तो आंसर आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइन्थ नंबर। इसको 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए कंसीडर करो आप पेपर में, हमें आने के चांसेस फुल हैं, इसको हम मिस नहीं कर सकते। टेंथ क्वेश्चन है टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल स्क्वायर कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल स्क्वायर
और हमारा आंसर आना चाहिए साइन ए कॉस ए। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। ये मैंने पहले एलएचएस का क्वेश्चन लिखा पूरा सेम। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ आप भी। ये सोचो, tan a 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह पे cosec स्क्वायर, बाकी सब सेम। हाँ, ये रीजन लिखना जरूरी है, tan a अपॉन sec स्क्वायर a होल स्क्वायर और वहां पे cosec स्क्वायर a होल स्क्वायर। तो फिर नेक्स्ट लाइन पे क्या आएगा, tan a अपॉन में sec स्क्वायर a होल स्क्वायर है ना, दो बार आ गया, और वहां पे भी cosec स्क्वायर a 2 टाइम्स हमने लिखा क्योंकि होल स्क्वायर है। अब नेक्स्ट लाइन पे tan a की फॉर्मूला sin a अपॉन cos a और sec स्क्वायर का अपोजिट cos स्क्वायर, फिर sec स्क्वायर के अपोजिट cos स्क्वायर, और वहां पे भी ऐसे ही cot का फॉर्मूला हो गया cos a अपॉन sin a, cosec का sin स्क्वायर a, फिर cosec स्क्वायर का sin स्क्वायर a। ये sin a अपॉन cos a सेम, फिर cos स्क्वायर की जगह पे मैंने लिखा cos a इंटू cos a, ये cos स्क्वायर a सेम, फिर cos a अपॉन sin a सेम, इंटू यहाँ पे sin a इंटू sin a इंटू sin स्क्वायर a सेम। अब स्टार्टिंग में cos cos में कट, sin sin में कट, देखो sin a सेम, फिर cos a, फिर cos स्क्वायर a प्लस sin a इंटू cos a प्लस sin स्क्वायर a। अब sin a सेम, sin a कॉमन निकाला, cos a भी कॉमन निकाला, अंदर बचा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और उसकी फॉर्मूला होती है 1। देखो RHS आ गया, sin a और cos a, क्योंकि cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a की वैल्यू 1 होती है। LHS इज इक्वल टू RHS। ये वीडियो को 2 बार 3 बार तो कम से कम आप देखो, जितनी बार ज्यादा देखोगे उतना ज्यादा आपको स्टेप्स लर्न होती जाएगी, फार्मूलाज आपको लर्न होती जाएगी, और यही मेरा पर्पस है कि सारे बच्चों को फार्मूलाज लर्न हो जाए। फार्मूला लर्न हो जाएंगे तो इजीली पेपर में आप कोई भी सम हो आप आराम से उसको कर सकते हो। ये हमारा LHS RHS क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, sec 4a 1 minus sin 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। चलो देखते हैं, आप भी थोड़ा सोचो LHS, क्योंकि अभी देखो क्वेश्चन चेंज होके आया तो फिर आप क्या करोगे। हमें आंसर्स को लर्न नहीं करना है कभी भी, हमें फार्मूलाज को लर्न करना है, उसको अप्लाई करना सीखना है। ये है sec 4a और 1 माइनस sin 4a। तो हमने क्या किया, देखो sec का अपोजिट किया 1 अपॉन cos 4a, और यहां से हमने दो ब्रैकेट बनाई, एक प्लस में एक माइनस में, और लास्ट वाला 2 tan स्क्वायर a मैंने सेम लिखा। नेक्स्ट लाइन पे 1 अपॉन, हाँ देखो cos स्क्वायर है दो बार है ना, 4 है, और 1 माइनस sin स्क्वायर a की फॉर्मूला होती है cos स्क्वायर a, ये सेम, और लास्ट वाला माइनस 2 tan स्क्वायर a भी सेम। एक कट हो गया cos स्क्वायर, बाकी क्या बचा, 1 माइनस cos स्क्वायर a, 1 प्लस sin स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, ये हमारे पास बचा है। 1 अपॉन cos स्क्वायर a सेम, हाँ साइन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए सेम, यस 2 tan स्क्वायर है तो मैंने दो बार लिखा, और tan स्क्वायर में कट हो गया। अब sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1, तो आंसर आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। यस प्लीज करके देखो, मैं बार बार पूरे वीडियो में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों का फायदा होना चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। और मुझे इसमें कमेंट जरूर देना, लाइक जरूर देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की। tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। यस थोड़ा डिफरेंट सम है ये, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। हमें मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा, हाँ देखो शिफ्ट किया मैंने, माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा सेम, यहां से दो ब्रैकेट, एक प्लस में एक माइनस में, और वहां पे tan थीटा इंटू tan थीटा हमने कर दिया। अब sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा और tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1, हाँ शिफ्ट किया मैंने, आपस में शिफ्ट किया। नाउ इक्वल रेशो थ्योरम, ईच रेशो थी अगर हम लोग करें तो ऊपर वाले आपस में प्लस, नीचे वाले आपस में प्लस, sec थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा
और टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अरेंज कर लिया, देखो आंसर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने कर लिया प्रूव। इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें प्रॉब्लम सेट देखने को मिलेगा। ये हमने प्रूव कर लिया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करेंगे। और जितना हो सके इसको प्लीज शेयर करो, लाइक करो, कमेंट जरूर करना। ओके बाय।